नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आज जिस स्पीड से हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, यह एक बहुत ही गहन चिंता का विषय है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का या किसी भी तरह के इनोवेशन या किसी भी तरह के डिस्कवरी का सहारा लिया गया था, यह लिया गया था लोगों के हेल्प के लिए, लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, लोगों के काम इजी करने के लिए, राइट। यही एक मुझे तो यही समझ में आता है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज तो यही होना चाहिए कि भाई जो भी प्रॉब्लम है हमारे आसपास, वो प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकें। और उसी से साइंस का भी जन्म होता है, उसी से हर तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी जन्म होता है, हर तरह के डिस्कवरी का भी जन्म होता है। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से, जिस स्पीड से हम लोग बायोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह ह्यूमन सोसाइटी के लिए, जो इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर उभर कर आया है। सोचने वाली बात क्या है इसमें, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ग्राफीन, पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब रहने देगा कि नहीं देगा, लेकिन ये वर्ड ग्राफीन, ग्राफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता चला गया है। क्योंकि ग्राफीन जो है, जिस तरीके से इसको, ये क्या है, कंडक्टिव धातु है, समझ लीजिए, कंडक्टिव मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कंडक्ट कर सकता है ना। सेंसर्स वगैरह के इस्तेमाल में भी यूज हो सकता है। लेकिन ग्राफीन का जिस तरीके से, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा, ग्राफीन का जिस तरीके से यूज देखा जा सकता है, ग्राफीन का जिस तरीके से यूज किया जा सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चीज हमारे शरीर के अंदर का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाहर कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकती है। On many different substrates. Previously, we could only make graphene on materials that were like polyimide, a particular type of polymer. But now what we found is by tuning the laser a little bit differently and defocusing the laser, which first carbonizes the material, and then we take the carbonized material and convert it into graphene. So what you see here is you don't see ink. This is not ink. This is not the addition of ink to a material. This is taking the material itself, the wood itself, and converting it into graphene. And the laser allows us to write it into any pattern that we wish. This is on a piece of wood, or we can do it even on foods, like this is a potato. So remember what graphene is. It's these single atomic thick sheets of graphite, and now we take these and we put a few of them on top of each other as we convert the material itself, a piece of bread, and so you can convert the carbohydrates that are within bread to graphene. Or we can do it on a coconut, so you can take a coconut and convert that into graphene. Now why would we want to have something like this? This is all conductive, and so it can conduct electricity. So what we can do now is we can make electronics embedded within fabrics and make electronics embedded within wood. So right now we're going to be lasing a cardboard box here, and the significance of being able to put electronic traces on cardboard boxes is that it has a lot of potential commercial significance in being able to write RFID tags directly on boxes, so you can either tell where it's been, or you can put a sensor on the box and see what kind of conditions it's been exposed to. Currently, people are using RFID tags that have been manufactured and they attach them to the boxes, but being able to directly convert a box would be really valuable. Why would one want edible electronics? Well, first of all, let me start with, very often we don't see the advantage of something early on, but when we make it available, people start seeing the real advantage. So can you even have electronics embedded on food and then say use this as a heat circuit to heat the food more easily? If there's, say, an RFID tag written onto this potato, where has it been, how long has it been stored, what's its country of origin and its city of origin, and what path did it go to get to your table? All that can be embedded not on a separate tag that's placed on the food, but directly on the food itself. And these can also have sensors that would detect E. coli, sensors that would detect microorganisms that you might not want. They could immediately light up and give you a signal
that you don't want to eat this. So being able to barcode food in a sense could have real advantages. अब और ये चीज इतनी छोटी है जो कि आपको देखने से समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आलू लिए और आलू के ऊपर एक छोटा सा प्रिंट है, या आप सेब लिए, सेब के ऊपर एक छोटा सा प्रिंट है। वो प्रिंट, उस प्रिंट में ही ग्राफीन मिलाया हुआ है, उस प्रिंट के ग्राफीन में ही कुछ सेंसर्स मिलाए हुए हैं जो आपके मोबाइल फोन में आपको दिखता है ना, सेंसर्स जैसे जो आपको आपका हार्ट बीट बताता है, आपके जैसे फॉर एग्जांपल वो वॉच आया, सेंसर वॉच, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच आप देखो, स्मार्ट वॉच से आपको पूरे शरीर का हर चीज़ को वो लोग मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कितना स्पीड से भाग रहे हो, कितना स्पीड से सांस ले रहे हो, कितना स्पीड से आपका हृदय का गति है, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर लेवल क्या है, ब्ला ब्ला। उससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि ये ग्राफीन जो है आपके शरीर के अंदर पहुंचकर हर तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बाहर डाल सकता है। अब देखने में तो ये अच्छी बात है कि ग्राफीन हमारे शरीर में अंदर में जाएगा और हर तरह के प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यदि किसी का किडनी प्रॉब्लम है, किसी का लिवर का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ का प्रॉब्लम है, तो उस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो बाहर डॉक्टर्स को बता सकता है और डॉक्टर्स उसके हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। काइंड ऑफ एन ऑटोमेशन विच विल हेल्प ह्यूमन सोसाइटी to find cures efficiently. Very good. But ग्राफीन का क्या आपने ये सुना है, क्या आपने ये देखा है कि ग्राफीन हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर या हमारे दिमाग के अंदर पहुंचकर क्या हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है? क्या हमारे जो सोचने की जो क्षमता है, जो हमारा जो अपना एक फ्रीडम है, जो विल है, उसको भी प्रभावित कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि आप देखो, हमारा ब्रेन क्या है ना, ब्रेन के अंदर जो भी चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल सेंसेस है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, जो कि जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस भिजाते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसी के हिसाब से वो लोग विचार को व्यक्त करने का एक क्षमता प्रदान करते हैं लोगों में। ये सब कुछ प्रभावित किया जा सकता है ग्राफीन और ग्राफीन से रिलेटेड सेंसर्स के थ्रू। और यदि ये आपके शरीर के अंदर पहुंचा तो आपका जो अपना एक फ्री विल होगा, जो आपका जो अपना एक फ्रीडम होगा, वो फ्रीडम नहीं रह जाएगा। आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, यदि आपको खुद को कंट्रोल करना है, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकोगे, बिकॉज सब कुछ उनके हाथ में होगा जो इस पूरे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो इस पूरे इंफॉर्मेशन को, आपके शरीर के अंदर के पूरे इंफॉर्मेशन को अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ग्राफीन हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर क्या कारनामा करेगा, किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फायदा पहुंचाने वाला है, किस तरह से इस इंफॉर्मेशन का गलत यूज हो सकता है, ये हमको नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। और ये इस तरह के हम लोग, ग्राफीन जो है हमारे शरीर के लिए घातक भी है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी पैदा करता है, एक हमारे शरीर के किसी पार्ट को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई तो रिसर्च हुआ नहीं है, ना ही कोई रिसर्च हो गया आपके सामने कोई पेपर आया है कि हाँ भाई ये ग्राफीन भी आपके शरीर के अंदर जाता है तो ये शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज, अननोन चीज यदि हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो हमें बचना चाहिए। इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी हो रहे हैं ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी आप ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से धड़ल्ले ये लोग इसका यूज करके हमारे खाने के सामान के ऊपर यूज करके ये लोग एक फीचर बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर का इंफॉर्मेशन बराबर हर मूवमेंट, हर मिनट, हर सेकंड को कलेक्ट करते रहें, ताकि उनको पता चले, ताकि वो कभी भी हमको प्रभावित कर सके, ताकि हमारा अपना खुद का कोई फ्रीडम, अपना खुद का कोई फ्री विल ना रह जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारा फ्री विल, हमारा फ्रीडम हमारा अपना है। हम जो सोचते हैं वो हमारा अपना सोच होना चाहिए, ना कि किसी और का प्रभावित किया हुआ सोच। They call it part of the fourth industrial revolution. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions. The focus, as all of you know, today is on what's now called the Internet of Bodies.
involving medical implants and other kinds of devices that go inside your body, and all together with the internet as a whole comprise the Internet of Bodies. The Internet of Bodies, or IOB, is actually an ecosystem. It's a bunch of devices that are connected to the internet that contain software and that either collect personal health data about you or can alter the body's function. We think of the Internet of Bodies as this collection of all these devices as well as all the data that the devices are gathering about you. And in healthcare, it's Internet of Bodies has been around for quite a while. So the Internet of Bodies, imagine the power of AI. What is artificial intelligence? It's a way to automate computation and cognition. So we can now automate learning, perceiving, doing computation. It's a pervasive general purpose technology that will be used in all of our industries, that will come into our professional networks, our private networks, our schools, our industries and our offices. What I wanted to epitomize with the Internet of Bodies is this notion that we will be under assessment, we will be under measure of computation in every aspect of our lives in the future. From what you eat, who you date, what you buy on the internet, how much energy you use, but also what are your vital signs? How well are you doing in terms of health? What kind of specific genetic quirks do you have? What's your genome telling about your health, about your mental health, about how well you are doing, how well you are aging, what kind of disease you are susceptible to? It has a bit of an Orwellian twinge to it. Well, क्या ठीक है, इसी के साथ मैं यह वीडियो खत्म करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।